Good evening and welcome. You're watching Election Radar right here on NDTV. Our election yatra started from the western part of Uttar Pradesh, moved phase by phase, and now for the 6th and the 7th phase is in Purvanchal. We are in Gorakhpur. We got you a constituency profile of Gorakhpur only yesterday, but today we are going to talk about the very crucial eastern pockets of Purvanchal. Now, Purvanchal is very significant because whoever captures Purvanchal, it's got a bellwether sort of an identity for the past 15 years, captures the state of Uttar Pradesh. Let's quickly get you a profile of this region. So battleground UP, the Purvanchal factor, the winners of Purvanchal over the past 15 years have moved from blue to red to saffron. So there are a total of 19 districts here, 111 seats to be precise. In 2007, the BSP won 70 constituencies from this region. And yes, they formed the government in the state. Then the Samajwadi Party in 2012 won 80 out of 111, and yes, they formed the government too. But in 2017, the BJP won 100 out of 111 from these 19 districts, and yes, they formed the government. So who will do that this time around over here? So what's so unique about Purvanchal and its identity? No, Hindu-Muslim does not work that effectively in Purvanchal. It is the caste calculation that works best over here. So how important is Purvanchal? Number one, this is a predominantly Bhojpuri-speaking belt. The region is favorable for agriculture, but lack of resources have kept it backward. It is considered the bellwether region in the state. It is dominated by backward castes like Kumhar, Prajapati, Kushwaha, Kori, Kurmi, as well as Nishad. And some of these castes and their names and their leaders and their identities you have heard all through the course of this election. Now, in 2022, there has been a fair amount of realignment as far as these caste-based leaders are concerned. Most of them lined up with the Bharatiya Janata Party in 2017. That is not the case this time around, because the BJP has partnered with Apna Dal S, which is Anupriya Patel's faction, and also with the Nishad party headed by Sanjay Nishad, sizable and a considerable Nishad population here. But the Samajwadi Party has joined hands with, now start counting, Sohail Dev Bharatiya Samaj Party, the Mahan Dal, Apna Dal breakaway faction called Kamerawadi, and the Janwadi Party Socialist. It also aligned with the RLD, but that was an alliance for the West. All the rest of these alliances that the Samajwadi Party has done will show their effect and results in these 6th and 7th phases. So it is very crucial, make or break. O.P. Rajbhar of the SBSP parted ways with the BJP, is now with the Samajwadi Party. SBSP, remember, has a stronghold on backward castes like Beend, Kumhar, Prajapati, Kushwaha and Kori. The Samajwadi Party is also eyeing backward votes after ex-BJP ministers Swami Prasad Maurya, who's in a contest in the 6th phase, and Dara Singh Chauhan defected just before the elections and they are now part of the Samajwadi Party. The BJP aligned with Anupriya Patel's Apna Dal just to keep these Kurmi votes, and Dr. Sanjay Nishad to keep the Nishad votes consolidated. As we told you, that both these parties have tried to get their caste equation right, the caste calculation for Purvanchal right. Who will succeed? Because both of them claim that they've got that equation and calculation just right to get this bellwether region in their pocket. We put this to a short debate. Let's listen in to that conversation on what Purvanchal thinks, or the leaders of Purvanchal think, about the caste calculation. 19 जिले हैं पूर्वांचल में, और उसकी राजनीति किस तरीके से बदलती या बिगड़ती है, उसका भी बहुत हद तक दिशा निर्देश या राह यहीं गोरखपुर से मिलती है। 2-3 अहम मुद्दे हैं जिन पर हम बात करेंगे। एक तो ये कि इस बार जातीय गणित किसके पक्ष में है, क्या समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, बसपा के पक्ष में है, या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, जैसे कि 2017 में थी। इसके अलावा ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन दंगा के बारे में बात हो रही है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं पूर्वांचल की इस लड़ाई में। मैं स्वागत करना चाहता हूं यहां हमारे मेहमानों का। सबसे पहले अंकित मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत्येंद्र श्रीवास्तव, आप गोरखपुर के बार एसोसिएशन
से ताल्लुक रखते हैं। आलोक मोदी जी बहुजन समाज पार्टी से हमारे साथ हैं। अनुज अस्थाना, आप समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद कुमार शुक्ला प्रोफेसर हैं और कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और विजय श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी के गोरखपुर के प्रत्याशी। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है मिश्रा जी, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस बार तमाम बातें कही गई हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो अलायंस किया है उस अलायंस में पश्चिम में रालोद था, लेकिन बाकी सारे अलायंस जो हैं वो अपना असर पूर्वांचल में दिखाएंगे। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य उनके पास आ गए, ओपी राजभर उनके साथ हैं, इसके अलावा और भी छोटे छोटे दल जैसे महान दल और अपना दल, कमेरावादी, ये सब अलायंस जो है समाजवादी पार्टी ने किए हैं इस उम्मीद से कि उसका असर पूर्वांचल में दिखेगा। तो आपको नहीं लगता है ये आपके लिए नुकसान की बात है? देखिए, इस बार का चुनाव जो है वो किसी जाति समीकरण पर नहीं होने जा रहा है। इस बार का चुनाव जो है वो विकास के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर और सुरक्षा के मुद्दे पर होने जा रहा है। जो पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सुशासन की सरकार आई है जनता के सामने, उसने जनता का भरोसा इस तरह से जीता है कि जनता फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाने जा रही है। और अखिलेश यादव हो या मायावती हो या अन्य जो भी पार्टियां हैं, जो अभी तक उत्तर प्रदेश में जाति आंकड़ों के आधार पर जो सरकारें बनती बिगड़ती आई हैं, कभी वो खेले, कभी हम आए, कभी वो रहे, सपा बसपा की जो राजनीति जातिगत चलती रही एक वर्ग विशेष को लेकर के, आपका ये कहना है कि अब आप ये कह रहे हैं कि अब जातिगत राजनीति उत्तर प्रदेश में होगी ही नहीं? जातिगत राजनीति बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि अब जो है जनता जो है विकास को पसंद कर रही है, अब जाति को नहीं पसंद कर रही है। जो विकास करेगा, जो विकास की बात करेगा और जो विकास को करेगा, जो वादे करेगा, जो उसको निभाएगा, जनता उसके साथ रहेगी। अनुज जी, आप किस तरीके से देखते हैं जो मिश्रा जी ने बोला है? जातिवाद का बढ़ावा भारतीय जनता पार्टी बहुत सफाई से रखती है अपने पास और उसका उपयोग करती है। दूसरे दलों में ये सेंध लगाने का काम करती है जातीयता पे। पिछली बार इन्होंने जातीयता को आधार बना करके सबको अपने अंदर समायोजित किया और जातीयता के नाम पर ही वोट मांगा था। और आज वह जातीयता, जब वह दल के लोगों की अपेक्षा पूरी नहीं हुई, उनके जातीय लोगों की मंशा पूरी नहीं हुई, तो वही नेता जातियों के अलग होकर के दूसरे दलों से अलायंस कर लिए हैं। और इस बार इनकी हार इसी वजह से अपने ही करने से सुनिश्चित। तो आपका ये कहना है कि जाति एक फैक्टर रहेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में? बिल्कुल। हाँ। अभी जो, और वो बीजेपी के खिलाफ है आपके हिसाब से? हाँ, इन्होंने जो वादा जातियों से पिछली बार किया था और एक ध्रुवीकरण किया था, और वो इन्होंने वादा पूरा नहीं किया। अभी आरक्षण को लेकर के जो इन लोगों ने खेल खेला है पिछड़ी जातियों के साथ, आज पिछड़ी जातियां चौकन्ना हो गई हैं। इसके रोष में समाजवादी पार्टी के उसमें एकत्र हो गई हैं। ठीक है, इससे पहले कि आपके पास में आऊं, आप इसका जवाब देंगे। मोदी जी बहुजन समाज पार्टी के भी यहाँ से हैं। जातीय आधार पर राजनीति में जो पार्टियां उभर करके आईं, उनमें से एक समाजवादी पार्टी का जिक्र किया जाता था रीजनल आइडेंटिटी की, और दूसरी बीएसपी। जब ये बात होती है जिसमें बीजेपी का कहना है कि अब ये फैक्टर ही नहीं है और समाजवादी पार्टी का कहना है कि फैक्टर है, बस बीजेपी के पक्ष में नहीं है, इसमें बसपा अपने आप को कहाँ देखती है पूर्वांचल में? देखिए, बहुजन समाज पार्टी शुरू से ही सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती आई है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में अगर गोरखपुर की बात किया जाए तो गोरखपुर की 9 सीटों में हमने ब्राह्मण उम्मीदवार भी दिया, क्षत्रिय उम्मीदवार भी दिया, वैश्य उम्मीदवार भी दिया, दलित समाज से भी हमने उम्मीदवार देने का काम किया है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी का अलायंस हो चाहे समाजवादी पार्टी का अलायंस हो, वो चुनाव के पहले ही अपनी हार मान चुके थे, इसलिए सभी दलों से इधर उधर अलायंस करने के चक्कर में पड़े रहे। और हमारी मुखिया बहन मायावती जी ने 403 में से 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार फिर से बनने जा रही है। क्योंकि 2007 से 2012 तक की जो हमारी सरकार थी, कानून से कानून का राज स्थापित करने का हमने काम किया था, और उस चीज़ को आज भी पूरी जनता याद करती है, पूरी मीडिया भी उस चीज़ को भूली नहीं है। इसलिए इस बार पुनः हम लोग पूरी बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। विजय जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, और यही जो जाति के आधार पर हो रही राजनीति और जातीय समीकरण जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, मैं उससे संबंधित आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। आपकी एक नई पार्टी है, आप यहाँ पर भी अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रहे हैं।
आपकी क्या गणित है? आपको लगता है कि पूर्वांचल में बिना जातीय समीकरण बिठाए आप चुनाव जीत सकते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी सबसे पहले तो जात की बात करती ही नहीं है। जात की बात करने वाले लोग वो अपना सोचें। हमारी पार्टी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जनता की बात करती है, आम जनता की बात करती है, आम आदमी की बात करती है, उसमें सभी लोग समाहित होते हैं। तो हमारी पार्टी जात की बात नहीं करती है। मैं मिश्रा जी वापस आपके पास आना चाहता हूं। आपने जातीय आधार पर जो बातें हो रही थी उसके बारे में सुना, अब आपका राइट टू रिप्लाई। देखिए, जो अभी लेकिन देखिए, ये कहना, आप ये तो मानेंगे, ये कहना कि जातीय आधार पर अब राजनीति होती ही नहीं, हमने मॉडल ही बदल दिया, ये कौन मानेगा? देखिए, मानने का अगर मैं प्रमाण दूं आपको, तो गोरखपुर इस विधानसभा सीट को ही ले लीजिए। समाजवादी पार्टी ने किसको टिकट दिया? अपने पार्टी में किसी भी नेता को टिकट दिया अपने पार्टी से? नहीं दिया। जब उनको अपने पार्टी में कोई नेता ही नहीं मिला, तो वो जो है भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे एक परिवार को उन्होंने यहाँ पे भाजपा के खिलाफ उतारा। मतलब उनको अपने पार्टी से कोई प्रत्याशी नहीं मिला और जाति देख कर उतारा। ठीक इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं आदरणीय विजय कुमार श्रीवास्तव जी, आप देख रहे हैं मेरे बगल में खड़े हैं। चाहे आप बसपा के कैंडिडेट देख लीजिए, यहाँ शायद एक मुस्लिम है कोई लड़ रहे हैं बसपा के तरफ से। तो जाति बंटवारा किस आधार पर हुआ? हमने तो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ पिछले 20 वर्षों से यहाँ का अच्छा, अगर एक सेकंड, अगर जातीय गणित आपने नहीं की है तो फिर बार बार संजय निषाद जी का निषाद होने का जिक्र करना या पटेलों का साथ होना, क्योंकि अनुप्रिया पटेल आपके साथ हैं, फिर ये सब क्या है? देखिए, जो हमारे विचारधारा से सहमत है, जो हमारे तो जात वाली राजनीति तो आपने भी की ना। ये कहना कि हम उससे ऊपर उठ गए, ये कौन मानेगा? विचारधारा में आता, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी ये सोच के आए थे कि यहाँ काफी लूटेंगे कमाएंगे, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य रहे हो। जब उनका काम नहीं बन पाया, जब देखे कि जितने टिकट की उनको मांग थी वो नहीं मिल पाएगा, उनके बेटे को टिकट नहीं मिल पाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके चले गए और खुद जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। परमानंद जी, so they can say whatever they have to, that they don't believe in this politics of Jat Paat, but the reality is that if you've got to win Purvanchal, you've got to get these equations right. And in 2017, the BJP had them right. Do they have them right this time around, or are they trying to change the goalpost to suit themselves? And will it necessarily work? You heard that debate right there. Let's move on now and tell you another angle in this election which is being spoken about a lot, and that is the Jang Ka Rang, the color of rust. Dimple Yadav, the wife of Akhilesh Yadav, had made certain comments about a rusty engine, train engine, and compared it to the dress or the clothes that the Chief Minister wears. Listen in. डबल इंजन की सरकार है, ये बताइए कि जंग का रंग क्या होता है? जब जंग लग जाता है लोहे में, इंजन की बात हो रही है तो लोहा ही इस्तेमाल होता है इंजन बनने में। जंग का रंग क्या होता है? हाँ, कौन सा रंग होता है जंग का? मुझे लगता है जिस रंग के हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है। So the BJP is spinning this around as an insult to the Sanatan Dharma. We asked this question also in the debate we had earlier in the day. Let's listen into the comments. एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं अब, वो है डिम्पल यादव का एक बयान, जिसका भी यहाँ पूर्वांचल में बहुत चर्चा हो रहा है कि भाई जंग का रंग जो है वो योगी आदित्यनाथ की पोशाक का रंग है और इंजन में जंग लग गई है। आपको लगता है कि ये भी बिल्कुल उसी तरीके का हल्का बयान है जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया? देखिए, किसी के पहनावे को जंग से तुलना कर देना। एक, जब आप भावनाओं को भुनाने के लिए केवल रंग का इस्तेमाल करेंगे तो दूसरा भी अपना एक रंग बताएगा कि इसका भी रंग होता है। सूर्य का रंग भी भगवा है, शिवाजी का जो चोला पहनते थे वो भी रंग भगवा था, बुद्ध का भी जो चीवर था वो भी रंग भगवा था। लेकिन राजनीति में जनता के भावनाओं को दोहन करने का जो आपने चोला ओढ़ रखा है उस पर हमला है, उस पे लोगों की आपत्ति है कि आप धर्म के नाम पर इस रंग को बदनाम न करें।
मेरा आपत्ति इस पर है। ठीक, आप इस पे कैसे जवाब देंगे? देखिए, अभी आप जिम्पल यादव के बयान की बात कर रहे थे। अब वो सोच वो लीजिए वो वाला उनके शब्दों में जंग का रंग आपने भी पहना है। जी, तो अब सोच लीजिए कि एक संत का जो रंग होता है, जिस रंग के कपड़े संत पहनते हैं, जिस रंग से एक हिंदू धर्म की पहचान है, उन्होंने पूरे धर्म पे जो है हमला बोला है। वो मात्र योगी आदित्यनाथ पर व्यक्तिगत हमला नहीं है। किस प्रकार से उन्होंने जंग से तुलना की है और किस प्रकार से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है, और यह बता रहा है कि हार का खतरा कितना उनके सर पे दिख रहा है। Okay, moving on now, in this contest of Purvanchal, there are some Bahubalis, some Dons who are also in the mix. This time around, their sons are also contesting. We are talking about Mukhtar Ansari's son, Abbas Ansari, who is fighting on a SBSP ticket, which is in an alliance with the Samajwadi Party. He spoke to my colleague Saurabh Shukla on why he feels that this Bahubali narrative is not true, whereas his father is actually some sort of a Robin Hood in his region. And also he explains why he has so many guns. हम इस वक्त मऊ में हैं और मऊ में हमारे साथ हैं अब्बास अंसारी। हम सब जानते हैं अब्बास अंसारी साहब मुख्तार अंसारी साहब के बेटे हैं और इस बार समाजवादी पार्टी के घटक दल सुभाषपा से, यानी ओपी राजभर को आप सब जानते हैं, उनकी पार्टी ने इनको टिकट दिया है और वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। अब्बास, मुख्तार जी आपके पिता हैं। अब आप बोलेंगे मीडिया वाले कहते हैं, लेकिन हम लोग जब गूगल करते हैं उनका नाम तो माफिया, डॉन, बाहुबली, तमाम ये नाम सामने आते हैं। और बीजेपी के प्रचार में भी अमित शाह से लेकर के छोटा नेता तक कहता है कि मुख्तार अंसारी देखो जेल में है, बुलडोजर चल रहा है। तो मुख्तार अंसारी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए के फेवर में काम करते हैं कि उन्होंने देखो मुख्तार अंसारी को सबक सिखा दिया। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो विधायक जी को जिन भी नामों से मीडिया के लोग या भारतीय जनता पार्टी के लोग बुला ले, जनता उनको किस नाम से जानती है, किस नाम से जानते हैं भाई आप लोग? विधायक के नाम से। देखिए, ये तो आपके साथ आए लोग हैं ना। यहाँ आप इतनी देर पहले से थे। नहीं आपको आप चाचा को बता दो। हम लोग यहाँ के गरीबों के वो मसीहा। अच्छा ठीक है। अगर क्राइम की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, तो मैं सवाल पूछता हूँ कि ब्रजेश सिंह क्या है, संत हैं? इस देश के सबसे बड़े दुश्मन दाऊद इब्राहिम के दोस्त, उनके साथ फाइली, उनके लिए कई हत्याएं करे हुए जघन्य अपराधों में उनका साथ लिप्त रहे ब्रजेश सिंह देश के प्रधानमंत्री की गोद में पिछले 5 सालों से, बनारस में 7 सालों से हैं। कोई उनको पूछने वाला नहीं। सत्ता के समर्थन से एमएलसी बना दिए गए। उनके सगे भतीजे 40 से ज्यादा मुकदमे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी अपना सिंबल देकर के चुनाव लड़ा रही। तो आप आश्वस्त हैं जीत को लेकर? 100%। मैं क्या आश्वस्त हूँ, जब जनता मेरे साथ है। आज तक कोई नहीं हरा पाया। कोई हरा पाया? पिछली बार 6000 वोटी से जीते। बड़े बड़े लोग आए। जीत तो 1 वोट की भी जीत होती है। देश के मुखिया आकर यहाँ कहकर गए थे, जनता ने मुंह पर कालिक पोत कर भेज दिया। इस बार तो सोलदेव भारतीय समाज पार्टी का भी आशीर्वाद है, आपका गढ़ है, समाजवादी पार्टी का भी आशीर्वाद है, और मैं खुद चुनाव मैदान में हूँ, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं। अब्बास कॉन्फिडेंट हैं, उनको लगता है कि जो तमाम उपमाएं लगता नहीं, 50,000 वोट अगर भाजपा पाएगी तो 1.5 लाख वोट मैं पाऊंगा। ठीक है, रिजल्ट के बाद में हम बात कर लेंगे। अभी अब्बास फोन पे बात कर लेंगे, आके बात कर लेंगे। अब्बास खुद चुनाव में हैं, उनके पिता अब तक जेल से लड़ते रहे, अब वो खुद चुनाव पर हैं, खुद चुनाव लड़ रहे हैं और देखना होगा कि वो कितने वोटों से जीतते हैं। पर फिलहाल अब्बास बेबाकी के साथ अपनी बात रखते हैं। सहयोगी विनीत और राहुल सिंह के साथ मऊ में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। In this interview, he also said that the reason why I have so many guns is because I am a shooter, and there's nothing illegal about it. Anyway, let's stop for a short break on Election Radar, and when we come back, we're going to tell you a little about a campaign war that is presently on in Uttar Pradesh between the BJP and the SP. And trust me, you don't want to miss this. Stay with us. Welcome back to Election Radar. Let's now talk about this campaign video war that is going on between the BJP and the Samajwadi Party. If you're in UP, you must have seen it already. So the BJP has this song called "Jo Ram ko laaye hain, hum unko laayenge."
So the Samajwadi Party decided, no, we'll make our own parody. That is also doing well. And then the Samajwadi Party's song, Janta Pukarti Hai Akhilesh Aiye. So the BJP decided, well, if you make a parody of my song, I'll make one for yours. We leave you with this original campaign video and the parody video in which both parties are trying to trump one another. Trust me, it is hilarious. जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो बेटी जलाए हैं हम उनको भगाएंगे, जो साड़ पलाए हैं हम उनको हटाएंगे, यूपी में सपा वाली साइकिल को जिताएंगे, यूपी में सपा वाली साइकिल को जिताएंगे, यूपी में सपा वाली साइकिल को जिताएंगे। जनता पुकारती है अखिलेश आइए, खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए। ओ जो लोहिया ने छोड़ी विरासत तुम ही तो हो, जेपी को जिस पे नाज है वो सूरत तुम ही तो हो। अब नेताजी के काम को आगे बढ़ाइए, अब नेताजी के काम को आगे बढ़ाइए, जनता पुकारती है अखिलेश आइए, जनता पुकारती है अखिलेश आइए, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, दंगों में फिर से यूपी को वापस जलाइए, दंगों में फिर से यूपी को वापस जलाइए, यूपी को जिसने लूटा वो नेता तुम ही तो थे, जेपी के सपने तोड़ते वो बेटा तुम ही तो थे। एक बार